कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, संस्थान के प्रमुख महोदय, संचार माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए आदरणीय अधिकारीगण एवं अतिथिगण, भाइयों व बहनों, आईआईसीएम के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर मैं हमारे संस्थान के प्रमुख डॉक्टर प्रभाष चंद्र मिश्र सर को अपने गणमान्य वक्ता एवं अतिथियों के स्वागत तथा उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद दिव्य सानू। Respected Sri Anil Kumar Jain, Secretary to Government of India, Ministry of Coal, New Delhi, our chief guest on the occasion of 27th Foundation Day of Indian Institute of Coal Management, respected Sri Pramod Agrawal, Chairman Coal India Limited and Chairman Board of Governors IICM, guest of honor for this evening, distinguished dignitaries, audience, my colleagues at IICM, ladies and gentlemen. On behalf of this institution, I welcome you all on this auspicious occasion. Please accept my respectful pranam. We are forever indebted to the visionary leaders for conceiving and establishing an exemplary institution imparting professional management training to interdisciplinary executive of Coal India and the coal sector in the form of IICM and imparting considerable autonomy to the institute by registering under Societies Act. This institute is a continuous training and learning center offering 25,000 man-days of training in a normal calendar year. We get continuous support from Coal India Limited, CCL, CMPDL, and all coal companies in the form of practicing faculty. In addition, academic support is obtained from reputed institutions in this vicinity, such as XLRI Jamshedpur, IIT Kharagpur, ISM Dhanbad, and also All India Institute of Medical Science, New Delhi, among others, and also various professional bodies of different domains. Indian Institute of Coal Management stands for academic excellence in coal management training, a legacy established over quarter a century ago of outstanding performance. Coal mining industry remains the core focus for us, and we constantly reassess and update our courses and curriculum to suitably address the evolving need of coal industry. In this scenario of non-linear change, the current challenge is to maintain the engagement and quality of curriculum in the midst of global pandemic. So far, IICM has conducted 36 training engagements after the lockdown period, where approximately 1,000 executives participated through webinars and virtual classrooms by utilizing technology, and is well prepared for continued functioning through these times. IICM has always focused on wholesome development of coal executive, enabling industry managers with required managerial skill. The concept of industry preparedness all over the world has changed in the last few years. We ensure our managers have adequate exposure to the entire segment of coal management education. From finance to marketing, strategy to ERP, our managers are offered vast array of programs to build a strong knowledge base. Given the paradigm shift that the corporate landscape has been experiences over the past few years, our institute has not only evolved a strategy to always a step ahead to produce coal managers that participate in India's growth story, but also leaders who can shape it through senior management programs. It gives me immense pleasure to share with you that here at IICM, we, with an excellent mix of academics and ethics, we nurture the young managers to meet the challenges of future and develop the potential to become the business leaders of tomorrow. Our chief guest for today's function, Sri Jain, is an inspiring mentor and has been constantly motivating the coal professional across India through his wisdom. Today, his Foundation Day lecture on India's emerging energy landscape and role of coal will certainly enthuse the professionals participating virtually in our celebration. Sri Pramod Agrawal,
Chairman sir, the guest of honor this evening, is not only our leader, but role model for all coal professionals in the country. He is able to infuse life into the people around him by virtue of his personality in a way that is of a special significance for all of us. यत्रोत्साह समारंभो यत्रा लस्य विहीनिता नय विक्रम संयोजम एस्तत्र श्री रचला ध्रुवम। जहां उत्साह और प्रयत्न है, जहां आलस्य नहीं है, जहां नीति और पराक्रम का संयोग है, वहां श्री यानी संपत्ति अचल बनी रहती है। टुडे when the world seemed to be in a turmoil and the mind is wrapped in fear, the Bhagavad Gita enlightens us on the right way to perceive these testing times and continue to perform our duties with due diligence. Ya nisa sarvabhutanam tasya jagriti sanjami yasya jagriti bhutani sa nisa pasyato mune. Meaning, what is night for all beings is the time for awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is the night for the introspective sages. With these words, we solicit your blessings and good wishes. May I request our faculty member Sri Divya Sanu Pandey to invite respected Chairman Sir to kindly address and enlighten us. धन्यवाद सर। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं हमारे चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल सर का आज के व्याख्यान विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं स्वागत करता हूं। श्री प्रमोद अग्रवाल सर ने आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के पश्चात आईआईटी दिल्ली से डिजाइन इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। तत्पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक कर्मठ अधिकारी के रूप में इन्होंने नगरीय प्रशासन, विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश आदि विभागों में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल सर के अभिभाषण के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय मिश्रा जी, उपस्थित साथियों, आईआईसीएम के 27वें वर्षगांठ पर मैं आप सब लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आईआईसीएम की स्थापना एक बहुत ही विजनरी लीडर ने किसी ने की होगी और जिन्होंने एक दिशा दी और एक बहुत ही अच्छे और हरे से वातावरण में, सुंदर से वातावरण में इस कॉलेज की स्थापना की गई, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, ताकि कोल इंडिया के सभी अधिकारियों को क्रमबद्ध और एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग दी जा सके। आईआईसीएम, हम लोगों ने कोल इंडिया में एक नई पॉलिसी भी बनाई है ट्रेनिंग के लिए, और आईआईसीएम का इस ट्रेनिंग पॉलिसी में पूरा योगदान रहेगा। अब बेसिकली इस ट्रेनिंग आईआईसीएम के ही माध्यम से अधिकांशतः पूरी की जाएगी। सबसे पहले जो अधिकारी हमारे यहाँ प्रवेश पा रहे हैं, उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग आवश्यक होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग एक औपचारिकता नहीं है। कंपनी में जो नए अधिकारी आते हैं उसे कंपनी के बारे में, कंपनी के कल्चर के बारे में बताया जाता है और ये अधिकारी आपस में घुल मिल सके, एक दूसरे को जान पहचान सके, उनके बीच में कमराडरी बन सके, यह आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त संख्या में एक साथ अधिकारी रह सके। और आईआईसीएम में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें जो स्थान है शायद कम है, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये प्लान करना चाहिए कि वहां पर रेजिडेंशियल व्यवस्था में सुधार हो सके और रेजिडेंशियल व्यवस्था बड़ी बन सके, ताकि 200-250 बच्चे, ऑफिसर्स वहां रुक सके और आपस में इंटरेक्ट कर सके। जब तक इन सबका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक आपस में बौद्धिक विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक ट्रेनिंग का पर्पस पूरा नहीं होगा। ये कॉमराडरी बनाना, एक इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि कंपनी में एक नया कल्चर आ सके और कंपनी के कल्चर के बारे में वो जान सके। इसके अतिरिक्त जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें E4, E5 लेवल पर जब वो सुपरवाइजरी लेवल पर आते हैं तो उन्हें पुनः एक बार ट्रेनिंग देना आवश्यक किया गया। तत्पश्चात E7 और E8 लेवल पर जब मैनेजमेंट लेवल पर आते हैं तब भी उन्हें ट्रेनिंग देना आवश्यक किया गया है। और यदि ये
ट्रेनिंग हम लोग आवश्यक रूप से दिला पाए तो निश्चय ही कोल इंडिया का जो कल्चर है उसमें व्यापक परिवर्तन हो पाएगा और अधिकारी अधिक सुदृढ़ हो पाएंगे, अधिक जानकारी उनको हो पाएगी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। यह आवश्यक नहीं है कि आईआईसीएम की स्ट्रेंथ में वृद्धि करने का अर्थ यह आवश्यक नहीं है कि आईआईसीएम में और अधिक अधिकारियों को पदस्थ किया जाए। शायद वो ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। आईआईसीएम को अपनी स्ट्रेंथ की वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो वहां पर जो लोकल में स्थित है इंस्टीट्यूट्स उनके साथ कुछ ये प्रोग्राम में सहभागीदारी करे, वहां के अधिकारियों और उनके प्रोफेसर्स को बुलाए ताकि वो अच्छे स्तर का लेक्चर्स आदि हो सके, जो भी ट्रेनिंग हो काफी उत्कृष्ट स्तर की हो। यह सौभाग्य की बात है कि रांची में आईएम है, एक्सएलआरआई है, रांची के पास बीआईटी मिश्रा है, थोड़ी दूर पर आईआईटी आईएसएम है, जमशेदपुर में एक्सएलआरआई जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित एचआर का कॉलेज है। इन सब से आप लोगों को संबंध बनाना चाहिए, उन सब से मदद लेनी चाहिए ताकि आप लोग और अच्छी तरह से काम कर पाए और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हो वो बिल्कुल ही उत्कृष्ट स्तर की। यह भी आवश्यक है कि हर एक अधिकारी को कुछ दिनों बाद 2-3 साल पश्चात आवश्यक रूप से पुनः हफ्ता 10 दिन की ट्रेनिंग पर आना चाहिए ताकि उनको जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी बार बार उनको रिइंफोर्समेंट हो सके और उसमें नवीन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी जानकारी होती रहे। ट्रेनिंग के अभाव में सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिलती है टेक्निकल अधिकारियों में, सीआईएल एक बेसिकली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो थियोरिटिकल फाउंडेशन है वो कमजोर होने लगता है और आदमी जिस प्रकार से फील्ड में काम करता रहता है उसी को सही मानने लग जाता है और सही जो गलत तरीके से काम करने का एक तरीका है उसी को सही मानने से फिर कभी भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते हैं। और इस ट्रेनिंग की उपयोगिता को मैंने अपने जीवन में हमेशा देखा है। कई सारे ऐसे हमारे कंसेप्ट्स होते हैं जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन पर नहीं होते हैं बल्कि एक प्रैक्टिकल वे में काम करने की आदत के कारण बन जाते हैं। जैसे रोड में मुरम डालना, मैं समझता हूँ रोड में मुरम डालना एक जहर के बराबर है, लेकिन किसी तरह से एक वो फाउंडेशन बन गया था सिविल इंजीनियर्स में, एक तरह से हमेशा से ये बन गया है कि रोड में मुरम ही डालना है, उसको परिवर्तित करते ही रोड की क्वालिटी बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं उनको रिन्यू करना, उनके बारे में पुनः जानकारी प्राप्त करना और नए डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर जो हमारा काम करने के तरीके में थोड़ी थोड़ी कमियां आ जाती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक एडजस्टमेंट्स के कारण, उसको तोड़ना हमारी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही आवश्यकता अन्य विभागों में होती है, पीआर पर्सनल डिपार्टमेंट में और अन्य विभागों में, फाइनेंस में भी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अधिकारियों को उत्कृष्ट स्तर की ट्रेनिंग दें और यह काम मैं जानता हूं आईआईसीएम भली भांति कर रहा है। हम लोगों को किस प्रकार से इसको स्ट्रेंथन करना है इसके बारे में सोचना है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ किस प्रकार से टाई अप करना है इसके बारे में सोचना है और जो लोग इस क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप से कार्य कर रहे हैं उनसे टाई अप करके उनके नॉलेज का और उनके एक्सपीरियंस का लाभ अपने अधिकारियों को दिलवाना है, जिससे कि कोल इंडिया का एक कल्चर जो है, कार्य करने की जो पद्धति है उसमें और सुधार हो सके और हम लोग राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दे रहे हैं उसको और अधिक उत्कृष्ट तरीके से कर सकें। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया इसके लिए। और मैं इस मौके पर अंत में सचिव महोदय का स्वागत करना चाहूंगा और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने इस कार्य की महत्ता को समझा और समय देने का कष्ट किया। धन्यवाद। सर धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायक अभिव्यक्ति के लिए। निश्चय ही आपके शब्द हम सभी के लिए पाथेय स्वरूप हैं और हम सबका मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। अब इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार जैन, सचिव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अर्थशास्त्र में स्नातक तथा बिजनेस प्रबंधन में परास्नातक श्री जैन ने 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में जिला प्रशासन, कृषि, परिवहन, खान एवं खनिज, राजस्व, वित्त, पर्यटन आदि क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए अपनी सेवाएं देने के साथ साथ केंद्र, नीति आयोग, ऊर्जा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विशिष्ट विद्वान की
गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी आह्लादित हैं। आज के इस स्थापना दिवस व्याख्यान, जिसका विषय इंडियाज इमर्जिंग एनर्जी लैंडस्केप एंड रोल ऑफ कोल है, के लिए मैं सर से नम्र निवेदन करता हूं। Good afternoon, friends. Pramod, Shri Mishra, and others who are on this web meeting. When I came to Ranchi, maybe 3 to 4 months back, or maybe even earlier, then I happened to spend the night in the guest house in your campus. And I was very impressed. And I remember that under the APM regime, जब कॉस्ट प्लस regime हुआ करती थी पेट्रोलियम सेक्टर में, कोल सेक्टर में, अब तो आप लोग को स्वतंत्रता है अपना भाव निर्धारित करने की, परंतु उस समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कुछ मार्कअप लगा के कोयले का बिक्री दर निर्धारित होता था। तो उस रेजीम को बाद में लोगों ने बड़ा एतराज किया कि उसमें इनएफिशिएंसीज बिल्डअप हो जाती थी। लेकिन उस रेजीम का एक लाभ यह हुआ कि बहुत सारा अधोसंरचना विभिन्न क्षेत्रों में बन गया, जैसे IICM बना या और बहुत सारी संस्थाएं बनी, बिकॉज दैट कॉस्ट वाज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कोल। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट उस रेजीम का लाभ लेके एक बड़ी अच्छी संस्था, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, एंड आई एम श्योर दैट आप लोग की अवेलेबिलिटी की वजह से CMD कोल इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए इस एक रेडी इंस्टीट्यूट का फायदा उठा सकें और लोगों को यहाँ इंडक्शन के लिए भेज सकें। So my congratulations to Mr. Mishra and to Coal India for having conceived this kind of an institution which is geared to play a very important role. आपने आज मेरे लिए जो टॉपिक रखा है कि इंडिया की क्या इमर्जिंग लैंडस्केप है और कोल का क्या रोल है, बड़ा बहुत ही सटीक सा सब्जेक्ट है। एंड मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर, जैसा कि मेरा अभी बायोडेटा आपको बताया गया, कि एनर्जी सेक्टर के साथ तो खैर हम सब लोग एज अ उपभोक्ता तो जब से जन्म लेते हैं तब से जुड़े रहते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से मेरा एनर्जी सेक्टर से संबंध 17 साल पुराना है। मैं 2003 से जब पेट्रोलियम मंत्रालय में पदस्थ हुआ, उसके बाद कुछ समय के लिए एक ऑक्सफोर्ड में एक संस्था के साथ में शोध छात्र के रूप में संबद्ध रहा। उसके बाद मैं नीति आयोग में 5 साल, तो इस तरह से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और अब कोल। तो मेरे जो मैंने इंडिया बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ज़्यादातर काम तो हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसी पर्सपेक्टिव ही रहता है। तो जो मेरे कुछ अनुभव है उसके बारे में मैं 10-12 मिनट आप लोगों के साथ कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। Let us come to my talk is divided into 4 parts. सबसे पहले, what are India's energy challenges? Number 2, what is the response of the government or the policy makers to the challenges? Number 3 is, let's come to coal. What are the challenges and opportunities before coal? भारत के परिदृश्य पे कोल के लिए क्या challenges हैं और क्या opportunities हैं, वो मेरा थर्ड पार्ट रहेगा। और लास्ट में IICM इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, उसके बारे में आपको विचार शेयर करना चाहूंगा। मेरी समझ से इंडिया के एनर्जी चैलेंजेस 4 हैं, 4 प्रमुख चैलेंजेस हैं। 4 चैलेंजेस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन 4 प्रमुख चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है कि भारत में जो एनर्जी कंजम्पशन की जो नंबर्स हैं, जो सिचुएशन है, वो बहुत दयनीय है। तो एक चैलेंज है पॉलिसी मेकर्स के पास कि एक रिस्पेक्टेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए हम लोग को पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, अगर हम लोग पूरा भारत का जो प्राइमरी एनर्जी सप्लाई जिसे कहते हैं PES, जो टोटल एनर्जी भारत में
एनर्जी जो भारत में खपत होती है उसके भी दो पार्ट्स हैं, एक कमर्शियल एनर्जी है और एक नॉन कमर्शियल एनर्जी है। नॉन कमर्शियल एनर्जी में जैसे लकड़ी है और बायोमास दूसरा किस्म का है, घास वगैरह है या काउ डंग है, इस तरीके की। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 2012 में जब 12 फाइव प्लान लिखा जा रहा था, उस समय जो नंबर्स थे 11-12 में, तो भारत में कुल एनर्जी की कंजम्पशन 720 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट थी, 720 MTOE। और उसके अंदर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 175 यानी कि 25% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम वाज ऑफ नॉन कमर्शियल नेचर, जिसको हम कहते हैं ये लकड़ी, जो कि बिकती नहीं है, हेड लोड्स हैं, कुछ बिकती भी होगी थोड़ी बहुत गाँव में। तो 25% of India's total energy consumption belong to the non-commercial category where wood etc. is used. और तो जो 720 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में से 175 अगर आप निकाल देते हैं तो कितना 550 बैठता है, 550। तो 550 मिलियन टन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज ऑफ द कमर्शियल नेचर। सारे विश्व की चर्चाओं में, ग्लोबल चर्चाओं में कमर्शियल एनर्जी की ही बात होती है। इनफैक्ट कई बार ये हम लोगों ने बात उठाई उच्च स्तर पर कि भारत को जब अपनी एनर्जी कंजम्पशन की चर्चा करते हैं तो हम लोग को पूरी की पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो रिन्यूएबल नेचर की है। अगर हम लोग सिर्फ कमर्शियल की बात करते हैं तो हमारा रिन्यूअल का परसेंटेज, अब रिन्यूअल का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसमें न्यूक्लियर को हम लोग रिन्यूअल नहीं मानते, क्योंकि वो जो फ्यूल होता है थोरियम या यूरेनियम, वो कंज्यूम हो जाता है। रिन्यूअल तो वो है जो कि हाइडल है, पानी आएगा फिर इवेपोरेट होगा फिर आएगा, या सूरज रोज सुबह। तो न्यूक्लियर को हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर के फ्यूल के बारे में क्या है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना प्रकृति में एटॉमिक फ्यूल है। तो न्यूक्लियर का फ्यूल, और उसको सस्टेनेबल कहते हैं, रिन्यूएबल नहीं कहते। लार्ज हाइड्रो को हम लोग रिन्यूएबल नहीं मानते, क्योंकि एक यूएन ने रिपोर्ट स्टडी की थी, उसमें यह पाया कि जो लार्ज हाइडल डैम है वो ट्रीज का बड़ा सबमर्जेंस करते हैं, तो उसके लिए पेड़ कटते हैं तब जाके डैम बनते हैं, और उसके बाद जो उसके अंदर पेड़ उसके अंदर आते हैं वो सब अपना कार्बन रिलीज कर देते हैं, और फिर चूंकि उतना वृक्षारोपण होता नहीं है, इसलिए कोई वो जो कार्बन है वो नेट एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, इसलिए उसको रिन्यूएबल नहीं माना गया, उसको क्लीन माना गया है। तो एनर्जी को स्टडी करने के कई तरीके हैं, क्लीन एंड फॉसिल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्लीन, इस तरीके की अगर कैटेगरी निकालें तो भारत में अगर कमर्शियल एनर्जी का पार्ट देखते हैं तो लगभग 80% हमारी कमर्शियल एनर्जी का हिस्सा जो है वो डर्टी है, जिसके अंदर ऑयल, कोल एंड गैस आएगा, और 20% में सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर आएगा। तो एनीवे बातें बहुत सारी हैं, तो टाइम की सीमा को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में फॉसिल का जो शेयर है वो लगभग 80% है। आज हम चर्चा जो करेंगे आंकड़ों की, वो सिर्फ कमर्शियल एनर्जी की करेंगे। वो जो 175 मिलियन टन वाला वो है जो कि रिन्यूएबल है, और नॉन कमर्शियल है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल पैरामीटर्स में जब कंपैरिजन होता है तो कमर्शियल का ही होता है। तो उसमें अच्छा, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1980 के बाद का जो मैंने अध्ययन किया, यानी कि लास्ट 35 साल मान लें या 40 साल मान लें, इनमें भारत ही एक अकेला देश है विश्व के टॉप 10 एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज में, यू विल बी सरप्राइज टू नो, जहां फॉसिल का शेयर बढ़ गया है। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट सिंस 1980 टू 2015 का जो मैंने डेटा देखा है, 20 का भी डेटा में ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर्स होंगे, इंडिया इज द ओनली कंट्री in the basket of top energy consumers where the share of fossil has actually increased. In all other countries of major consumers, the share of fossil has actually reduced. तो ये चौथा, ये तीसरा चैलेंज है, और चौथा है एब्सेंस ऑफ मार्केट्स। बाजार की एनर्जी के अंदर इंडिया में मार्केट्स नहीं है। अब आप भी अपनी बात करें तो कोल इंडिया लगभग 70-72%, 75% इनफैक्ट
मोस्टली 80 हुआ है, इस साल शायद पिछले साल 75 हुआ होगा। आप अपना कोला का उत्पादन जो है वो फिक्स प्राइस पे आप लोग नोटिफाइड प्राइस के माध्यम पे आप बेचते हैं, उसमें बाजार नहीं है। बाजार का मतलब होता है मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स एंड द प्राइस बीइंग डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। तो कोले में मार्केट नहीं है। ऑयल एंड गैस में जितना डीजल पेट्रोल हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज करते हैं, शायद थोड़ा बहुत परसेंटेज एसआर ऑयल और रिलायंस ऑयल का होगा, बाकी 95-96% ये जो 4 कंपनियां हैं हमारी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, और थोड़ा बहुत आईबीपी या जो भी कुछ है, तो इनकी मिलीजुली कुश्ती है। तो एक ही भाव पे सब जगह पेट्रोल मिलता है, तो इट इज एन एब्सेंस ऑफ मार्केट। इलेक्ट्रिसिटी में भी जो भाव का निर्धारण है वो रेगुलेटरी कमीशंस के रोल होते हैं। तो मार्केट का एब्सेंस होना चैलेंज क्यों है? मार्केट का एब्सेंस होना चैलेंज इसलिए है क्योंकि मार्केट के एब्सेंस में सिर्फ पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्शन मिलता है, और मार्केट अगर आ जाती है तो किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो प्राइवेट सेक्टर अटेम्प्ट कर सकता है कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, वो हो जाए, तो वो ज्यादा पैसा कमा सके। तो लो पर कैपिटा, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हाई शेयर ऑफ फॉसिल एंड एब्सेंस ऑफ मार्केट्स, आई कुड हैव ये 4 चैलेंजेस के ऊपर ही 1 घंटा बातचीत हो सकती है, बट आई विल मूव फ्रॉम हियर। These are India's principal energy challenges. Now, what is the response of the policy makers to these challenges? जैसे लो पर कैपिटा है, let us take one challenge and one response. उससे उस चैलेंज को मीट करने के लिए भारत की सरकार ने, स्पेशली इसके लिए मैं, जो एनडीए की सरकार है, क्योंकि मैंने जब 2003 से ज्वाइन किया तो 2014 में ही ये सरकार आई, तो इस सरकार ने पहली बार एनर्जी के चैलेंज को हेड ऑन लिया। ये जो 2 स्कीम्स आई, सौभाग्य और पहल, इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ होम्स, 100% सर्विंग ऑफ एलपीजी टू कंज्यूमर्स, ये मैक्सिमल एजेंडा जो सरकार ने अडॉप्ट किया, यह अभूतपूर्व है। तो ये रिस्पॉन्स है। पहले हम लोग हमारे इंडिया में एलपीजी इंपोर्ट नहीं करते थे, हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा है। भारत ने तय किया था कि हम क्रूड इंपोर्ट कर लेंगे, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं करेंगे, उस क्रूड को हम इंडिया में प्रोसेस करेंगे। तो हमने रिफाइनरीज को खूब एनकरेज किया। आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, आप लोग को हैरानी होगी, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और नंबर 2 शायद डायमंड्स हैं, और दोनों ही एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कच्चा डायमंड लाते हैं, कच्चा तेल लाते हैं, उसको प्रोसेस करके बाहर बेचते हैं। लेकिन एलपीजी हम लोग अपनी खुद बना लेते थे, बट सरकार ने जो ये बोल्ड कदम उठाया कि हम 100% एलपीजी पहुंचाएंगे घरों में, उसके लिए उतनी एलपीजी भारत में उतनी हो पाती थी, हमने उसको इंपोर्ट किया, लेकिन 100% एलपीजी का प्रोग्राम चलाया, और इलेक्ट्रिफिकेशन तो आपको मालूम ही है। दूसरा था हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम हमारी पुरानी है, और तेल की, ऑयल में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ती 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 आज की डेट में हो सकता है 82% पहुंच गई होगी, और गैस में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस 50% है। कोयले के बारे में आपको आइडिया है कि लगभग 25%, जो कि देखा जाए हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही बात है जो प्रधानमंत्री को हमेशा तंग करती है कि ऑयल और गैस तो देश में है नहीं, लेकिन कोयला तो है, फिर भी 25% इंपोर्ट डिपेंडेंस है। तो इन एनर्जी के स्रोतों को विकसित करने के लिए, चाहे कमर्शियल माइनिंग का राउंड हम ला रहे हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, और पेट्रोलियम सेक्टर में रोज कोई ना कोई नई स्कीम आती रहती है। आज भी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में सभी कोयले के अधिकारियों को भेजा था कि जो पुरानी ऑयल एंड गैस की फील्ड्स हैं ओएनजीसी की, जिसमें उनको मुनाफा नहीं है, उन्होंने वो भी ऑक्शन पे लगा दी है। तो मैंने सुझाव दिया है चेयरमैन साहब को कि आपकी जो अंडरग्राउंड माइंस हैं और दूसरी माइंस में जिनमें आपको लाभ नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी से उसको टर्न अराउंड कर सके तो आप भी दीजिए उनको। तो ये है दूसरा रिस्पांस। तीसरा रिस्पांस हाई शेयर ऑफ फॉसिल के विरुद्ध, आपको सब मालूम है 175 गीगावाट का हम लोगों ने रिन्यूएबल का टारगेट 2022 का लिया है। इनफैक्ट 2030 के लिए 450, 1 गीगावाट का मतलब होता है 1000। तो जहां भारत में इस समय कुल मिला के लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के करीब थर्मल है, बाकी 25,000 हमारे यहाँ गैस है मेगावाट, 42,000 के करीब हमारे यहाँ हाइडल है, और 65 से 70,000 के करीब रिन्यूएबल सोलर और विंड आ गया, और 10,000 के करीब
हमारे यहाँ न्यूक्लियर है। तो 320 के करीब मुझे लगता है ये आंकड़ा बनता होगा, या 330-40 बनता होगा। उसके विरुद्ध 1,75,000 सोलर और विंड करने का लक्ष्य 2022 का है, और 4 लाख से ऊपर 2030 का है। तो इतना बड़ा रिन्यूएबल का टारगेट जो देश ने लिया है, ये फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस पर कम करने का लिया है। और जहां तक है मार्केट्स का एब्सेंस, उसमें सरकार कोशिश कर रही है कि मार्केट्स को अधिक से अधिक लाया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट तभी आएगी अगर उनको मार्केट्स दिखेंगी। इसीलिए हम लोग, अब आप देख रहे हैं कि पहले गैस, भारत सरकार गैस का भाव फिक्स करती थी, अब उन्होंने कहा है कि एक गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज बना दिया है कि वहां गैस बिकेगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी धीरे धीरे जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और एक 2 एक्सचेंजेस हैं, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, उस पर बिजली 15-15 मिनट के अंतराल पर बिकती है। तो उसमें भी मार्केट्स की तरफ लाने की तरफ सोच है। हम लोग भी पॉलिसी चेंजेस में सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कोयले को आप एक स्थायी, जैसे पीपीएस के अगेंस्ट हमें कहा जाता है कि निश्चित भाव पे एफएसए के भाव पे बेचिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी कोयले में छूट मिले, कि हम भी बाजार में अधिक से अधिक कोयला बेच सकें। तो सरकार का रुझान है कि मार्केट्स उसमें भी लाई जाएं। और फाइनली एक रिस्पॉन्स सरकार का और है कि इतनी बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंस और इतना बड़ा इंपोर्ट हमारा ऑयल का, एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी उस एनर्जी को डिलीवर करने के लिए, तो क्यों ना एनर्जी की कंजम्पशन को थोड़ा कम किया जाए। तो एनर्जी एफिशिएंसी इज अनदर एरिया विच, जो कि हमारे एक्चुअली सेक्टर में कोल में इसकी बड़ी चर्चा होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है। माइनिंग सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट एनर्जी कंज्यूमर्स। इनफैक्ट कल ही मेरे पास फोन आया पेट्रोलियम मंत्री जी का, वो कहने लगे कि आपके जितने भी हैवी मशीनरी है HEMM, वो आप डीजल पेट्रोल से आप LNG की तरफ शिफ्ट करिए। तो मुझे समझा रहे थे कि आपको पता है कि एनर्जी इक्विवेलेंस में गैस जो है वो डीजल पेट्रोल से सस्ती होती है। तो मैंने जब उनको बताया कि ये तो मेरे अध्ययन का क्षेत्र है, तो कहने लगे फिर तो आपको इसको जरूर करना चाहिए। तो मुझे बताया गया कि वो कह रहे थे कि सिंगरेनी कोल फील्ड में उन्होंने कुछ LNG फ्यूल्ड डंपर्स और शवल्स इंस्टॉल किए हैं। मैं CMD कोल इंडिया से अनुरोध करूंगा कि ये एनर्जी एफिशिएंसी का एक इंटरवेंशन होगा, क्योंकि जो डीजल पर आधारित जो इंजन हैं और गैस पे आधारित, उनमें एनर्जी कंजम्पशन पर आवर या पर किलोमीटर में भी अंतर होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे LED लाइट आई और घरों में ECBC का कोड लगाया गया, तो इनसे एनर्जी की हमारी जो सघनता है उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये इंडिया का एनर्जी का पॉलिसी का रिस्पॉन्स है। अब तीसरा सब्जेक्ट कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस बिफोर कोल। ये आप लोग इस क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ हैं, इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये वेल अप्रिशिएटेड है। FMCs की तरफ जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी जा रहे हैं, वो बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कम से कम उठे। अभी मैंने जो मिनिस्ट्री में एक सस्टेनेबल कोल माइनिंग का एक डिवीजन जो JS हैं भवानी पति, उनकी अगुवाई में स्थापित किया था पिछले साल, और उन्होंने जो आपकी 30 सबसे बड़ी माइंस हैं उनसे डेटा एकत्रित किया है 5 पैरामीटर्स पर, कि जो अंडरग्राउंड वाटर के चैनल्स हैं या सरफेस वाटर के चैनल्स हैं उनकी क्या स्थिति है कोल माइंस में। नंबर 2, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसकी क्या स्थिति है। तीसरा, भूमि का उपयोग क्या हुआ है, बिकॉज लैंड खराब हो जाती है माइनिंग में। और चौथा, वृक्षारोपण, जो पेड़ थे वहां पेड़ कटे, अब पेड़ का सृजन कैसे हुआ। एक 5वां पैरामीटर और है। तो उसकी स्थिति जब मैंने आपके 30 माइंस की एकत्रित की तो बहुत अच्छा आंकड़ा देखने को मिला कि कुछ माइंस जो उड़ीसा की हैं बड़ी बड़ी, उनमें SPM की स्थिति खराब है, बाकी सब पैरामीटर्स आपके बहुत अच्छे हैं। और वो SPM भी बताया गया इसलिए खराब है क्योंकि उन माइंस के नजदीक पावर प्लांट्स हैं, तो उन पावर प्लांट्स का जो एमिशन है वो हमारे कोल एरिया के एमिशन में शामिल हो गया है। मैंने कहा था शुक्ला जी को, CMD को, कि आप दूसरी दिशा में जो एयर का मेरा पैरामीटर लेके फिर आप उस आंकड़े को दीजिए। तो ये सारे ये चैलेंजेस हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज में क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का आप लोग काम कर रहे हैं, कोल बेड मीथेन, कोल गैसिफिकेशन इत्यादि। और एक और
इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इस विषय में चेयरमैन साहब से मेरी बात होती रही है कि हम लोग कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का जो कोल है उसको कंबशन में ना भेजें, उसको पावर प्लांट में ना भेजें, उसको ऐसे उपयोग में भेजें जहां वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हो, जैसे स्टील में भेजें या उसको कोल गैसिफिकेशन में ले जाएं। बिकॉज कोयले को जलाने से इतना एमिशन होता है, परंतु कोयले को अगर हम लिक्विफाई करें, गैसिफाई करें, तो उसकी कार्बन एमिशन कंट्रोल की जा सकती है। लास्टली IICM, IICM के बारे में मुझे बताया गया कि इस सेंटर को यूज करके डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग, सीनियर मैनेजर्स की ट्रेनिंग और बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोग करते आए हैं और उसको आगे भी और बढ़ावा देने का प्रयोग किया जाएगा। और मैं आपको 3-4 विचार देना चाहूँगा जो आप लोगों को सोचना चाहिए, जिसमें IICM की अभी दिल्ली में चर्चा नहीं होती। इतना बड़ा सेंटर है और इतना बड़ा आपके पास अमला है, तो आपकी ट्रेनिंग्स और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्पीकर्स, फैकल्टी इस उम्दा क्वालिटी की होनी चाहिए कि दिल्ली में चर्चा हो कि एक IICM नाम की चीज़ है। तो मैं आपको उस विषय में 3-4 विचार देना चाहूँगा। एक तो मेरा आपको सुझाव है कि आप पॉलिसी रिसर्च के सेंटर के रूप में उभरिए। ट्रेनिंग्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप लोग की इन हाउस रिसर्च होगी। तो कुछ बच्चे पोस्ट डॉक, कुछ PhD के बाद भी जो बच्चे पढ़ रहे हो, IIT खड़गपुर में हो या और किसी जगहों से, आप उनको लीजिए। आप उनको एक पोस्ट PhD को अगर आप 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना अगर आप 5 बच्चों को भी लेते हैं तो उनसे 3 किस्म की रिसर्चेस कराई जा सकती हैं। एक तो वो रिसर्च जिसमें खूब फील्ड डेटा इकट्ठा करेंगे और साल भर में एक अच्छी 150 पेज की रिपोर्ट बनाएंगे। एक दूसरी है कि वो 3 से 6 महीने में कोई छोटे छोटे पॉलिसी ब्रीफ्स, जैसे कोकिंग कोल को के रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों ने किस तरीके से एक्सप्लोरेशन का काम लिया, एक उसके ऊपर। और 1 साल वाली रिपोर्ट तो वो सकती है कि कोल गैसिफिकेशन की क्या टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। और तीसरा, रोजमर्रा की जो हमारी समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ गई या कोई MDO के कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज डालना है कि नहीं डालना है, जिसमें जल्दी से 1 सप्ताह का अध्ययन करके, तो इस तरीके से अगर आपके पास 5 लड़का लड़की जो कि एनर्जी क्षेत्र के हों, और उसके अंदर सारे इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए, कुछ इकोनॉमिक्स के होने चाहिए, कुछ फाइनेंस के होने चाहिए, कुछ लॉ के होने चाहिए, तो आप मान के चलिए कि 1 साल के अंदर ये 5 तो 1-1 साल वाली 5 रिपोर्टें देंगे, बाकी एक बच्चा 2-2 रिपोर्टें 6 माही देगा, 10 रिपोर्टें वो होंगी। और जो छोटे छोटे पॉलिसी ब्रीफ्स होंगे वो उनके मार्फत एक बच्चा कम से कम 10-10, 15-15 देगा। तो 3-4 साल में आपकी जो IICM की जो वेबसाइट होगी वो इतनी रिच होगी कि इट में बिकम अ ग्लोबल सेंटर फॉर पॉलिसी एडवाइस। तो एक आपको ये सेंटर शुरू करना चाहिए। और इसके लिए मेरी आपको सलाह है कि भारत में 8-10 अच्छे पॉलिसी रिसर्च सेंटर्स हैं, आपको उनके साथ पार्टनरशिप्स डेवलप करनी चाहिए। और कुछ रिसर्चेस सिंडिकेटेड होती हैं। अब जैसे टेरी को जब डॉक्टर पचौरी को नोबेल प्राइज मिला था, तो वो जो उन्होंने वो कौन सी रिपोर्ट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो निकाली थी, वो एक सिंडिकेटेड रिपोर्ट थी। सारे विश्व की कंट्रीज ने इकट्ठे होके वो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट निकाली थी। तो 8-10 अच्छे एनर्जी पॉलिसी सेंटर्स हैं, टेरी उनमें से एक है, एक CEEW है दिल्ली में, एक C-STEP है बैंगलोर में, एक प्रयास है पुणे में, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है सुनीता नारायण जी का, वो है। इस तरीके से आपके क्षेत्र में और भी होंगे। तो 8-10 पॉलिसी रिसर्च सेंटर्स के साथ आप लोग को MOU करने चाहिए और मिलजुल के उनके रिसर्च स्कॉलर्स आपके यहाँ आए और आप उनके यहाँ जाएं। और फाइनली मेरा आपको सुझाव है, जो कि नई बात नहीं है, आप करते भी हैं, आपको एक लेक्चर सीरीज शुरू करनी चाहिए। और उस लेक्चर सीरीज में, वो शायद कोल इंडिया में होता है पहले से, अभी जो चेयरमैन थी, आप लोगों ने अपने फाउंडर्स डे पे कोल इंडिया के श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य को बुलाया था। इस तरीके से हो सकता है कि इंटरनेशनल फैकल्टी, मेरे टच में
बहुत सारे इंडियंस हैं और दूसरे विदेशी भी हैं जो कि विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज में हैं। बड़ी इच्छा है उनकी। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, जो कि पेट्रोलियम साइंस की वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर वरुण राय, उनसे मैंने संपर्क हुआ था मेरा। तो बड़ी इच्छा थी उनकी कि वो कोल में भी काम करते हैं, तो वो कहने लगे कि मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहूंगा। तो मैंने उनको कहलवाया था कि कोई फंडेड प्रोजेक्ट कर लेंगे। नहीं, नॉट एट ऑल, मैं अपने मातृभूमि को कुछ देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप वर्ल्ड, जैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन है, कितना बड़ा सेंटर है एनर्जी का, और भी होंगे, आप लोग को ज्यादा आइडिया होगा। कोल से रिलेटेड हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में भी हो सकते हैं, पोलैंड में अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। तो 8, 10, 12 यूनिवर्सिटीज के साथ आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। उनकी फैकल्टी वेब से स्पीच दे, लेक्चर दे, या आप कभी जब हालात सामान्य हो जाए, आपके लोग वहां जाएं, उनके लोगों को यहाँ बुलाएं। आप विश्व की सबसे बड़ी कोल कंपनी के स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन है, आपके यहाँ धन की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में नॉलेज की कमी क्यों हो? ये मैं सब लोग जानते हैं कि मेरा पेट्रोलियम क्षेत्र में ज्यादा काम है, मैं हमेशा कंपैरिजन उससे करता हूं। मुझे 1 साल से ऊपर आपके मंत्रालय में हो गया। नॉलेज का फ्री मूवमेंट in the coal sector, I don't get to see, and people have a feeling that coal sector is a very very primary। जिस तरह से जब आदि मानव था वो फिशिंग करता था और वो पशुपालन करता था और शिकार करता था, उसी तरह से कोयले का धंधा है, मिट्टी खोदना, हटाना और कोयला निकालना। नॉट एट ऑल, you have to do it scientifically so that your footprints on environment are the minimal, and your efficiencies are of the highest standards, and you use the coal in the you discover coal which is of high quality, produce it efficiently। तो ये हमारी आप लोगों से अपेक्षाएं हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये मैसेज दिया हो कि ये सब चीज स्थितियां अच्छी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी अपेक्षाएं अधिक से अधिक रहती हैं। मैं खुद भी अपने को उसी तरह से चैलेंज करता हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये विचार साझा किए। आई होप दैट आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया, और मैंने भी आज मीटिंग्स थी मंत्री जी के साथ, लेकिन चेयरमैन साहब के अनुरोध को मैं स्वीकार नहीं कर सका। तो हम लोग ने सबने जो आज टाइम इस पे इन्वेस्ट किया है, इसका जरूर कुछ ना कुछ आप फॉलो अप करेंगे, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बहुमूल्य शब्दों से हम सभी अनुग्रहित हैं एवं कृतार्थ हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की प्रशस्ति की दिशा में आपके विचार नितांत ही प्रेरणास्पद एवं दूरगामी परिणामदायक हैं। आप सभी की सहमति से सभी को धन्यवाद देते हुए इस संस्थान के 27वें स्थापना दिवस पर आप सभी की शुभकामना एवं मंगल कामना का प्रार्थी हूं। आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हृदय से धन्यवाद।